السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 42، قسط نمبر 42۔ مومن عورتوں کی حاضری۔ پھر کچھ ایماندار عورتیں آئیں اور کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 اتاری۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات المہاجرات فامتحنوہن۔ اہل ایمان، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان ظاہر معلوم کرو کہ وہ واقعی ایماندار ہیں، تو ان کو کفار کی طرف واپس نہ کرو یہاں تک کہ اس حکم کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 کافر بیویوں کو اسی دن طلاق دے دی۔ ایک سے معاویہ نے اور دوسرے سے صفوان بن امیہ نے شادی کر لی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی اور راستہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل فرمائی، جیسا کہ امام مسلم نے قتادہ رحمۃ اللہ کے واسطہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے۔ جب مدینہ کے راستہ میں جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس معاہدہ اور حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کرنے کی وجہ سے بڑے غمگین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فوز عظیم تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتاری گئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری میں قتادہ رحمۃ اللہ کے واسطہ سے انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے صلح حدیبیہ مراد ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سابقہ اور لا حق کا گناہوں کی مغفرت مبارک ہو، ہمارے لیے کیا انعام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات، اور اسی صحیح بخاری میں ہے، زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کسی سفر میں جا رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دیا، پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ سے کہا، اے عمر، تجھے تیری ماں گم پائے، 3 مرتبہ سوال کر کے تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دفعہ بھی تمہیں جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور سب مسلمانوں سے آگے ہو گیا، اور میں ڈرتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن اتر آئے گا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے سنا کہ کوئی شخص میرا نام لے کر اونچی آواز سے پکار رہا ہے۔ میں ڈرا کہ میرے بارے میں قرآن اترا ہوگا، چنانچہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر السلام علیکم کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر وہ سورہ اتری ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مجمع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے غمیم میں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اور ان کو یہ آیت سنا رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ یہ مجمع میں سے کسی آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ فتح ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابی داؤد نے ذکر کیا ہے۔ حدیبیہ میں چند احکام اور معجزات کا ظہور۔ اسی غزوہ میں ایک رات بارش ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آج میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے ہیں اور کچھ بندوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں اور ستارے کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور جس نے کہا فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے، اس نے مجھ سے کفر کیا ہے اور ستارے پر ایمان لایا ہے۔ اسی غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے کعب بن اجرہ کے حق میں تکلیف کی بنا پر سر منڈانے کے متعلق روزے رکھنے یا صدقہ دینے یا قربانی ذبح کرنے کا حکم اتارا، اور اسی غزوہ میں 7 آدمیوں نے مل کر ایک اونٹ قربانی کیا۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 مرتبہ اور سر کترانے والوں کے لیے 1 دفعہ مغفرت کی دعا کی۔ نیز اسی جنگ میں حدیبیہ کے مقام پر ایک دن پیاس نے لوگوں کو ستایا، وہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
पानी की एक डोलची से वुजू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा तुम्हें क्या हुआ? बोले हमें बहुत प्यास लगी है और पानी सिर्फ यही है जिससे आप वुजू कर रहे हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ने अपना हाथ डोलची में रखा और आप सल्लल्लाहु की उंगलियों से चश्मों की तरह पानी फूटने लगा। सब ने पेट भरकर पानी पिया और वुजू किया। इस वक्त इनकी तादाद 1500 थी। ये वाक़या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से बयान किया है और ये कुएं के इस वाक़या के अलावा है जो पहले गुजर चुका है। मुआहिदा के मुताबिक अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वापसी मसूरा और मरवान की हदीस में इस कौल के बाद कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की एक मुतल्लका से मुआविया ने और दूसरी मुतल्लका से सफ़वान बिन उमैया ने शादी कर ली, ये वाक़या बयान हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले आए। कुछ दिन बाद कुरैश मक्का में से अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला हल्का बगोश इस्लाम हुए। हल्का बगोश इस्लाम होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कुरैश को पता चला तो उन्होंने इनको वापस लाने के लिए 2 आदमी मदीना मुनव्वरा भेजे। उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इस अहद की बिना पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ किया है इसको वापस करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला हील व हुज्जत इनको इनके हवाले कर दिया। वो इन्हें लेकर निकले। जुल्हलीफा पहुंचकर वो आराम करने और खाना खाने के लिए कुछ देर के लिए उतर पड़े। वो खजूरें खा रहे थे कि अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला ने इनमें से एक आदमी से कहा ए फलां तुम्हारी ये तलवार बड़ी अच्छी मालूम होती है। इसने तलवार को मियान से निकालते हुए कहा हाँ अल्लाह की कसम ये बहुत अच्छी तलवार है, मैंने इसको बारहा आजमाया है, वाकई बेमिसाल है। अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा जरा मुझे भी दिखाओ। उसने तलवार इनके हाथ में थमा दी। उन्होंने तलवार के एक ही वार से इसको ठंडा कर दिया। ये देखकर इसका दूसरा साथी भागा और दौड़ता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखकर फरमाया इसको कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते ही इसने कहा वल्लाह मेरा साथी कत्ल हो गया है और मैं भी ज़रूर कत्ल हो जाऊंगा। इतने में अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला भी आ गए और कहने लगे अल्लाह के नबी वल्लाह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद पूरा कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वापस कर दिया था लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इनसे निजात दे दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी माँ के लिए हलाकत हो, ये जंग की आग भड़काने वाला है, अगर इसकी इमदाद की जाए। जब अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला ने ये सुना तो समझ लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फिर वापस कर देंगे। वो वहाँ से निकले और साहिल समंदर पर एक कटिया बनाकर रहने लगे। अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला को पता चला तो वो भी मौका पाकर इनसे जा मिले। इसके बाद कुरैश का जो आदमी मुसलमान होकर निकलता वो अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला के पास चला जाता, हत्ता कि वहाँ एक जमात इकट्ठी हो गई। वल्लाह वो जब सुनते कि कुरैश का कोई काफिला तिजारत के लिए शाम को जा रहा है तो उस पर हमला कर देते, काफिला में शामिल आदमियों को कत्ल कर देते और माल और असबाब लूट कर ले जाते। बिलाखिर कुरैश ने तंग आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला और अपनी रिश्तेदारी का वास्ता दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों को अपने पास बुला लें और आइंदा जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा उसके लिए हमारी तरफ से अमन है। हम इसकी वापसी के मुतालबा से बाज आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की ये दरख्वास्त मंजूर करके इनको खत भेजकर उन्हें अपने पास बुला लिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ा अयदियहुम अन्नकुम व अयदियकुम अन्नहुम हमियतल जाहिलिया, यानी अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने इनके हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को इनसे रोक दिया। आगे हमीयत जाहिलियत, चुनांचे इनकी जाहिलाना तरफदारी ये थी कि उन्होंने तस्लीम न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी ना माना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बैतुल्लाह के दरमियान हाइल हो गए। इब्न इसाक रहमतुल्लाह अपनी रिवायत में लिखते हैं अल्लाह ताला के फरमान पस अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमानदारों पर तसल्ली उतारी और इन पर तकवा की बात लाजिम की और यही इसके ज्यादा हकदार और इस पर ज्यादा कारबंद होने वाले हैं और अल्लाह ताला हर एक चीज को जानने वाला है। इस आयत में कलिमतुल तकवा से तौहीद मुराद है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं और बिला शक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़्क़ि इला कौलिही फजअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन करीबा। फतह से मुराद सुलह हुदैबिया है। ज़हरी कहते हैं कि इस्लाम में सुलह हुदैबिया से पहले इससे बढ़कर कोई फतह हासिल नहीं हुई, क्योंकि जहाँ दो मुखालिफ कुव्वतें जमा होती हैं लड़ाई होती है। जब सुलह हो जाए, लड़ाई रुक जाए और लोग अमन और सलामती के साथ एक दूसरे से मिलें तो इनको बाहम कलाम करने का मौका मिलता है। इसलिए जिस आदमी में अक्ल व शऊर का मादा मौजूद हो फिर वो इस्लाम के मुताल्लिक तहकीक करे तो इस्लाम इसके दिल में दाखिल हो जाता है। यही वजह है कि पहले जितने मुसलमान होते थे इन 2 सालों में इतने या इससे ज्यादा लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए। उलमा कहते हैं इस साल सूरज को ग्रहण लगा। इस साल ओस बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बीवी खौला रज़ी अल्लाह तआला से
ज़िहार किया। इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और मुबारक में बारिश की दुआ की और खुलकर बारिश हुई, और शराब भी इसी साल हराम हुई, जैसा कि बहुत से उलमा ने इसको बिल यकीन जिक्र किया है। लेकिन इब्न इस्हाक ने शराब की हुर्मत को बनु नज़ीर के वाक़या में जिक्र किया है, और वो जंग ओहद के बाद पेश आया था, और राय ये है कि वो 4 हिजरी में हुआ था। ग़ज़वा खैबर ये एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें बहुत से कले और ज़राअती फार्म हैं। ये मदीना मुनव्वरा से बजानिब शुमाल 8 बरीद के फासला पर वाक़या है। मुसाफिर 3 दिन और रात चल कर वहाँ पहुँचता है। इब्न इस्हाक रहमतुल्लाह लिखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ आखिर मुहर्रम 7 हिजरी में निकले थे। बाद ने 6 हिजरी के आखिर में लिखा है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह से मनकूल है, और इसको इब्न हज़म रहमतुल्लाह ने यकीनी कहा है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह लिखते हैं, राय वो बात है जो इब्न इस्हाक रहमतुल्लाह ने लिखी है, और इन दोनों कौलों में इस तरह तत्बीक मुमकिन है कि जिसने 6 हिजरी कहा है, इतने साल की इब्तदा की बिना हिजरत के हकीकी महीने पर रखी है, और वो रबीउल अव्वल का महीना है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुदैबिया में इसका वादा किया था। चुनाचा फरमाया, वादकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन ताखुज़ूनहा फ़अजल लकुम हादिही। अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है, तुम इनको हासिल करोगे, लेकिन इनमें से पहली ये है यानी सुलह हुदैबिया, और मगानिम कसीरा से मुराद फतह खैबर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का वादा पूरा करने के लिए इसकी हिमायत और इसकी नुसरत पर एतमाद करते हुए मदीना से खैबर की तरफ निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 1400 जानबाज और 200 घोड़े थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मेरे साथ वही चले जिसकी नियत जिहाद करना, और जो दुनिया के सामान का ख्वाहिशमंद है वो ना निकले। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पर सबा बिन अरफता गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा मुकर्रर फरमाया। सही बुखारी में सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में आया है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ निकले। हम रात में सफ़र कर रहे थे कि लोगों में से किसी ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला से कहा, तुम हमें अपना कोई गीत नहीं सुनाते। आमिर शायर थे, वो सवारी से नीचे उतरे और हुदी ख्वानी करने लगे। चुनाचा ये नज़म पढ़ना शुरू की, इलाही अगर तू मौजूद ना होता तो हम हिदायत ना पाते, ना सदका व खैरात करते और ना नमाज पढ़ते। मैं तुझ पर कुर्बान, जो हम दुनिया में रह कर गुनाह करें वो माफ़ फरमा, और अगर दुश्मन से मुठभीड़ हो तो हमें साबित कदम रख और हम पर तसल्ली और इत्मीनान उतार। जब हमें दुश्मन के मुकाबले के लिए बुलाया जाता है तो हम हाजिर हो जाते हैं, और चल कर हम पर दुश्मन अपनी फौजें चढ़ा लाए हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह की रिवायत में यह अशआर ज़्यादा हैं। बिलाशुबा जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया है, जब वो फितना बपा करते हैं तो हम उसमें दाखिल होने से इनकार कर देते हैं, और हम तेरे फजल करम से बेनियाज नहीं हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये ऊँटों को हाँकने वाला कौन है? लोगों ने कहा, आमिर रज़ी अल्लाह ताला बिन अकू हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए। किसी आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए शहादत वाजिब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनसे कुछ और मुद्दत तक क्यों फ़ायदा नहीं उठाने दिया? इमाम अहमद रहमतुल्लाह की रिवायत में है, आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने गीत गाना और ऊँटों को चलाना शुरू कर दिया, और इनकी ये आदत थी जब सफ़र में ऊँटों को तेज़ चलाना चाहते तो कोई आदमी सवारी से उतर कर गीत गाता और इसी हालत में खुदी खानी करता। नेज़ इनका ये तजर्बा था कि जब जंग के मौका पर किसी का नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत व मग़फ़िरत की दुआ करते तो वो शहीद हो जाता। अब्दुल्ला बिन उबई की शरारत। कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई ने खैबर के यहूदियों को कहला भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे शहर की तरफ रवाना हो चुके हैं। अपना बचाव कर लो, लेकिन ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी तादाद और तुम्हारा सामान जंग बहुत ज्यादा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मुट्ठी भर है, ज़रहों से खाली है, और इनके पास हथियार भी मुख्तसर हैं। जब अहले खैबर को पता चला तो उन्होंने कनाना बिन अबिल हुकैक और होज़ा बिन कैस को मदद देने के लिए बनु गतफान के पास भेजा, क्योंकि ये खैबर के यहूदियों के हलीफ थे, और कामयाबी की सूरत में इनको खैबर के आधे फल देने का लालच दिया। इस्लामी कुव्वत से खौफज़दा होने की वजह से उन्होंने इनकी ये पेशकश मुस्तरद कर दी, लेकिन इब्न इस्हाक रहमतुल्लाह की रिवायत में है कि उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। जब मुसलमान मकाम रजी में उतरे, इनके और गतफान के दरमियान एक दिन रात की मुसाफत थी, तो गतफान पूरी तैयारी के साथ यहूदियों की इमदाद के लिए खैबर की तरफ चल पड़े। उन्होंने अभी कुछ ही फासला तय किया था कि पीछे से शोर और गुल सुना। वो समझे कि मुसलमानों ने इनके बाल बच्चों और इनके मालों पर लूट डाल दी है।
इसलिए वो रास्ता से ही वापस हो गए। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों रहनुमाओं को, इनमें से एक नाम हसील था, बुलाया ताकि आपको वो बेहतर रास्ता बताएं जिस पर चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु गतफान और खैबर के दरमियान हायल हो जाएं। एक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले चलता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हमरा चले। जब चौरस्ता आया जहाँ से मुख्तलिफ सिमत में रास्ते जाते थे, तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब रास्तों से हम अपने मकसद की तरफ जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म दिया कि एक एक करके सबके नाम बताओ। वो बोले, एक का नाम हुज़न है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ता से जाना मंजूर न किया। उन्होंने कहा, दूसरे का नाम शाश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी पसंद न किया। उन्होंने कहा, तीसरे का नाम हातिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी इनकार कर दिया। हसील ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, इसका क्या नाम है? बोले, इसका नाम मरहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ता से जाना पसंद फरमाया। खैबर में दाखिला। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के नज़दीक सुबह की नमाज पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब साथी सवार होकर खैबर की तरफ चल पड़े। करीब पहुंचे तो देखा कि यहूदी अपने खेतों में काम काज करने के लिए कसियां और टोकरियां लेकर शहर से बाहर आ रहे हैं। इनको अपने शहर पर हमला का कुछ इल्म नहीं था। वो अपनी जमीनों में काम करने के लिए निकले थे। कहते हैं कि इन पर इस रात इस कदर नींद मुसल्लत हुई कि इनमें से कोई भी वक्त पर बेदार न हुआ, हत्ता कि इनके मुर्ग भी इस रात ना बोले। लश्कर को शहर की तरफ आते देखकर कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर ले आए हैं। फिर अपने शहर की तरफ भाग गए। जैसा कि सहीहैन में अनस रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर वीरान हो गया। अल्लाहु अकबर, खैबर वीरान हो गया। हम जिस कौम के मैदान में उतरते हैं इनकी सुबह बुरी होती है। और जब वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के करीब पहुंचे और इसके दरो दीवार नजर आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ। सब लश्कर ठहर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ की, ए अल्लाह, सात आसमान और इन चीज़ों के रब जिन पर उन्होंने साया किया है, सात ज़मीनों और इन चीज़ों के रब जिनको उन्होंने उठाया, और शैतान और इन चीज़ों के रब जिनको उन्होंने गुमराह किया, हम तुझसे इस बस्ती की भलाई, इसमें रहने वाले इंसानों की भलाई और इसमें मौजूद दूसरी चीज़ों की भलाई का सवाल करते हैं, और इस बस्ती के शर, इसमें रहने वाले इंसानों के शर और इसमें मौजूद दूसरी चीज़ों के शर से पनाह मांगते हैं। फिर फरमाया, अब अल्लाह ताला का नाम लेकर आगे बढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खैबर से और अहले खैबर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद जंग की। मुसलमानों के 15 आदमी शहीद हुए और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के एक कला पर फतह अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आल अबिल हुकैक के खजाने पर कब्जा किया जो गधे के चमड़े में महफूज था, और उन्होंने इसको वीरान जगह में दफन कर रखा था। नेज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि यहूदी लड़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब करते हुए इनको नसीहत की, जहाद पर तरगीब दी, सवाब में रुग़बत दिलाई और सब्र करने वालों को फतह और गनीमत की खुशखबरी सुनाई। एक रिवायत में आया है कि हब्बाब बिन मंज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैंप लगाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसका हुक्म, अल्लाह ताला ने इस जगह पर उतरने का हुक्म दिया है या जंगी तदबीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंगी तदबीर के लिए है, इसको मुनासिब समझा है। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, ये जगह कलैनता के बिल्कुल करीब है। ज़्यादातर इनकी तरबियत याफ्ता और जंग आजमूदा फौज इसी किला में है। वो हमारे तमाम हालात से वाकिफ़ है और हम इनके हालात से वाकिफ़ नहीं। इसके तीर हम तक पहुंच सकते हैं और हमारे तीर इन तक नहीं पहुंच सकते, और हम पर इनके शफून मारने का भी हर वक्त खतरा है। इसके अलावा ये खजूरों से घिरी हुई नशेबी जगह है और बीमारी का घर है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो हम इन मफासिद से खाली जगह कैंप लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी राय से इत्तफाक किया और फरमाया, तुम्हारा मशवरा दुरुस्त है। और इस तरह का वाक़या जंग बदर में भी गुजर चुका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को झंडा अता करना। सही बुखारी में आया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शोब चश्म की वजह से पीछे रह गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पीछे रहना मुनासिब न समझा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैबर में आ मिले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात जिसकी सुबह खैबर फतह होता है फरमाया, मैं कल एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जिससे अल्लाह ताला और इसका रसूल मोहब्बत करता है। और बुखारी में सहल की रवायत में आया है, और वो अल्लाह ताला और इसके रसूल से मोहब्बत रखता है। अल्लाह ताला इसके हाथ पर खैबर की फतह अता फरमाएगा। रात भर लोग इंतजार करते रहे कि झंडा कल किस खुशनसीब को मिलता है। इसलिए सुबह सवेरे सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाजिर हुए। हर शख्स उम्मीद करता था कि झंडा मुझे मिलेगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ हैं? लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आंखें दुखती हैं और वो खैमा में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जाए और इनको ले आए। वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों में अपना लाब मुबारक डाला। वो उसी वक्त
तंदुरुस्त हो गए, जैसे इनकी आंखें दुखती ही नहीं थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको झंडा अता किया और मैदान जंग में जाने का हुक्म दिया। अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनसे इस वक्त तक लड़ाई जारी रखूं जब तक वो ईमान लाकर हमारी तरह न हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी हालत पर चलते रहो, जब मैदान में पहुंचो तो पहले इनको इस्लाम की दावत दो और अल्लाह ताला के जो हक इन पर वाजिब हैं वो इनको बताओ। अल्लाह की कसम, अगर एक आदमी भी ईमान ले आया तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। लड़ाई के लिए मुबादरत। सही मुस्लिम में सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह ताला की हदीस में आया है, जब हम खैबर में पहुंचे तो इनका बादशाह मरहब तलवार घुमाता और गीत गाता हुआ मैदान जंग में आया। वो कहता था, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, पूरी तरह मुसल्ले, बहादुर और जंग आजमूदा हूँ। जब लड़ाई की आग भड़कने लगती है, इसके मुकाबला में आमिर रज़ी अल्लाह ताला मैदान में आए और कहा, खैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ, पूरी तरह मुसल्ला और दुश्मन की गर्दन मरोड़ने वाला बहादुर हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे पर तलवार चलाई। मरहब की तलवार तो आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ढाल पर रोक ली। फिर आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने मरहब की पिंडली पर वार किया, मगर इनकी तलवार मरहब के बजाय इनकी अपनी टांग पर जा लगी, जिससे इनकी अकल रग कट गई और उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया। रज़ी अल्लाह अन्हु सलमा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मैं निकला तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला की एक जमात को सुना कह रहे थे, आमिर रज़ी अल्लाह ताला की अमल ज़ाया हो गया, इसने खुदकुशी का इर्तिकाब किया। मैं रोता हुआ हज़रत सल्लम के पास आया और आप सल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लम, आमिर रज़ी अल्लाह ताला की अमल ज़ाया हो गए हैं। आप सल्लम ने फरमाया, ये किसने कहा है? मैंने कहा, आप सल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से कुछ लोग कह रहे हैं। आप सल्लम ने फरमाया, जिसने ये कहा है गलत कहा है, बल्कि वो तो 2 गुना सवाब का मुस्तहिक है। और एक मुत्तफिक अलैहि रिवायत में है, आपने अपनी 2 उंगलियों को जमा किया कि वो अमल सालिह में कोशिश करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है, कम ही कोई इस जैसा अरबी इस पर चला है। और सही मुस्लिम में है, सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, फिर मरहब मैदान में आया और कहने लगा, खैबर ने मालूम कर लिया है कि मैं मरहब हूँ, पूरी तरह मुसल्ले और जंग आजमूदा बहादुर हूँ। जब लड़ाई की आग भड़कती है, इसके मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला आए और कहा, मैं वो हूँ जिसका नाम माँ ने शेर रखा है और देखने में जंगल के शेर की तरह खौफनाक नजर आता हूँ। मैं इन्हें ओले का बदला भरपूर दूंगा, यानी खूब कत्ल करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरहब के सर पर इस जोर की तलवार चलाई कि इसका सर कलम कर दिया और इनके हाथ पर खैबर फतह हो गया। इब्न इस्हाक रहमतुल्लाह लिखते हैं, जब अली रज़ी अल्लाह ताला इनके कला के नजदीक पहुंचे तो एक यहूदी ने कला की दीवार से सर निकाल कर देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। यहूदी बोला, इस किताब की कसम जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, तुम गालिब आ गए। फिर मरहब का भाई यासिर मैदान में निकला। इसके मुकाबला में ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला आए। उन्होंने हज़रत सल्लम की फूफी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लम, मेरा बेटा कत्ल हो जाएगा। आप सल्लम ने फरमाया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा इसको कत्ल करेगा। चुनांचे ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने इसको मौत के घाट उतार दिया। इब्न इस्हाक रहमतुल्लाह ने लिखा है, हज़रत सल्लम ने यहूद का वती सलालम किलों में मुहासरा किया। जब इनको अपनी हलाकत का यकीन हो गया तो उन्होंने आप सल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लम उन्हें जलावतन कर दें और कत्ल ना करें। आप सल्लम ने इनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और आप सल्लम ने शक के नतात, कतिया और बाकी सब कलह और तमाम अमवाल बजोर तलवार फतह किए। सिर्फ यही 2 कले सुलह के साथ फतह हुए। जब अहले फिदक ने सुना कि खैबर के यहूद ने इस तरह सुलह की है तो उन्होंने भी यही दरख्वास्त पेश कर दी कि आप सल्लम उन्हें जलावतन कर दें, कत्ल ना करें और वो अपनी जायदादें और अमवाल आपके हवाले कर देंगे। बाकी खैबर मुसलमानों में तकसीम हुआ और फिदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था, क्योंकि इसकी फतह में मुसलमानों ने ऊँट और घोड़े नहीं दौड़ाए, यानी इनको लड़ाई नहीं करनी पड़ी थी। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लम ने अहले खैबर से इस कदर लड़ाई की कि उनके कलों में बंद कर दिया और उनकी ज़मीन, खेती बाड़ी और जूरों के बागात पर कब्जा कर दिया। फिर उन्होंने इस शर्त पर सुलह की कि इनकी जान बख्शी कर दी जाए और इतना सामान ले जाने दिया जाए जितना इनके ऊँट उठा सकें, और वो सोना चांदी आप सल्लम के हवाले कर देंगे। आप सल्लम ने इनसे इस शर्त पर सुलह कर ली कि वो कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। अगर वो इस शर्त की पाबंदी ना करेंगे तो इनके साथ सुलह होगी और ना कोई ऐद होगा। लेकिन उन्होंने चमड़े का वो बक्स हई बिन अख्तब माल और जेवरात से भरकर मदीना से जलावतन होते वक्त अपने साथ लाया था, गायब कर दिया। आप सल्लम ने हई बिन अख्तब के चचा से पूछा, हई का वो माल कहाँ है जिसको बनु नदीर की जलावतनी के दिन हमरा लाया था? इसने कहा, वो जंग के अखराजात और दूसरे मसारिफ में खर्च हो गया है। आप सल्लम ने फरमाया, माल बहुत था, वो इतने थोड़े अरसा में खर्च नहीं हो सकता। फिर आप सल्लम ने इसको ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया। जब उन्होंने इस पर कुछ सख्ती की तो कहने लगा, मैंने हई को इस वीराने में फिरते देखा था, शायद वहीं दफन किया हो, हालांकि पहले ये खुद वहां गया था। तलाश करने पर
वीराने से मदफून माल मिल गया। आपने इस ऐश चिकनी पर अबुल हुकैक के दोनों बेटों को, जिनमें से एक सफिया रज़ी अल्लाह तआला बिन्त हई बिन अख्तब का खावंद था, कत्ल कर दिया। औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया और इनके माल तकसीम कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जलावतन करना चाहा तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें यहाँ रहने दें, हम खेती बाड़ी करेंगे और बागात की हिफाजत करेंगे। हम ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इस काम को संभालने वाले आदमी नहीं थे, और जो थे वो भी जंगों में मसरूफ थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर खैबर इनके हवाले कर दिया कि इनको खेती और फलों से निस्फ हिस्सा मिलेगा और इनको जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेंगे वहाँ रहने की इजाज़त देंगे। साहिब हदी कहते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐश चिकनी की वजह से अबुल हुकैक के दोनों बेटों के सिवा किसी को कत्ल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह को हुक्म दिया कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेरा पर छोड़ आएँ। वो इनको मकतूलों के दरमियान से लेकर गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हरकत को बड़ा नापसंद फरमाया और कहा, बिलाल तेरे दिल से रहम निकल गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह को इस्लाम की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली और इस्लाम से ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने लिए मखसूस कर लिया और आज़ाद करके उनसे शादी कर ली। उनकी आज़ादी को मेहर बनाया, रास्ते में उनके साथ बिना की और दावत वलीमा का इंतजाम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरा पर चोट का नीला निशान देखा तो उसका सबब पूछा। उन्होंने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैबर में आने से पहले ख्वाब में देखा कि आसमान से चांद टूटकर मेरी गोद में आ गिरा है। वल्लाह मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक रहम व गुमा भी नहीं था। मैंने अपने खावंद के पास इसका जिक्र किया तो उसने मेरे मुंह पर इस जोर का तमाचा मारा कि उस पर यह दाग पैदा हो गया और कहने लगा कि तू उस बादशाह के ख्वाब देख रही है जो मदीना में जाहिर हुआ है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम शक हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी बीवी बनाया है या लोंडी की हैसियत से अपने पास रखा है। फिर वो कहने लगे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर पर्दा किया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, और अगर पर्दा न किया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोंडी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए ऊँट पर सवार हुए तो जो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन पर ओढ़ी हुई थी, इसी का कुछ हिस्सा उनकी कमर और मुंह पर डाल दिया और बाकी चादर अपने नीचे जीन से बांध दी। सुहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहते थे, क्योंकि उन्होंने मालूम कर लिया था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। सही बुखारी में अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत आती है, पहले सफ़िया दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला के हिस्सा में आई थी, फिर लोगों ने उनके हुस्न व जमाल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने लिए मखसूस कर लिया और उनकी आज़ादी को ही इनका मेहर मुकर्रर किया। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहा, इसके अलावा कैदियों से कोई और लोंडी ले लो। और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 लोंडियां देकर उनको दहिया रज़ी अल्लाह तआला से ख़रीदा था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से